معزز سامعین کرام اور خواتین اسلام، پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یادات کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگم خبر امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راک کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریہ نعرہ غوث اعظم جنم، غمد شیخ احمد رضا خان خطب عالم جنم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، فخر کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درودوں کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ اور بابا زبرت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ السلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، کہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا،
کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ حضرات محترم، یہ مہینہ ربیع الاخر شریف کا چل رہا ہے اور اسی مہینے میں 11 تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز منایا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ 11ویں شریف کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ مہینہ غوث پاک کا چل رہا ہے، اس لیے میں غوث پاک کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، غور سے سماعت کریں۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک رمضان شریف 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف میں وصال پائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف بغداد شریفی میں ہے۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور والدہ کا نام حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرات محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ غوث کسے کہتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے، اور غوث کے مطلب ہوتا ہے فریادرز، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو زبان سے کہہ دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالی پورا کر دیتا تھا۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کرام میں جس عظمت و وقار کے مالک ہیں، وہ
किसी और वली को नहीं मिला। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कोई वली नहीं आए हैं और नहीं आ सकते हैं और नहीं क़यामत तक आएंगे। हज़रात मुहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह किसी वली को नहीं बनाया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे वलियों से बड़े हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे वलियों से अफजल हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे वलियों का सरदार है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कोई वली नहीं आए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस कायनात में बहुत सारे वली आए हैं और जब तक दुनिया रहेगी तब तक आते रहेंगे, मगर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह कोई वली नहीं आए हैं और नहीं आ सकते हैं और नहीं क़यामत तक आएंगे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा कोई वली नहीं आए हैं और नहीं आ सकते हैं और नहीं क़यामत तक आएंगे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़े वली कोई नहीं आए हैं और नहीं आ सकते हैं और नहीं क़यामत तक आएंगे। हज़रात मुहतरम, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े वली हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे वलियों से बड़े हैं, सारे वलियों से अफजल हैं, सारे वलियों से अच्छे हैं, सारे वलियों से सच्चे हैं, सारे वलियों से बेहतर है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे वलियों का बादशाह है, सारे वलियों का राजा है, सारे वलियों का सुल्तान है, सारे वलियों का सरदार है, सारे वलियों का शहंशाह है, सारे वलियों का ताजदार है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मुबारक सारे वलियों के गर्दन पर है। हज़रात मुहतरम, इसीलिए तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा कोई वली नहीं आए हैं और नहीं आ सकते हैं और नहीं क़यामत तक आएंगे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े वली हैं, सारे वलियों का बादशाह है। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मुबारक सारे वलियों के गर्दन पर है। हज़रात मोहतरम, लोग गौसे पाक का नारा लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो क्या गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा का दामन है? गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा के दामन का नाम है? गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा का नाम है? नहीं, गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा का दामन नहीं है। गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा के दामन का नाम नहीं है। गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा का नाम नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा का दामन नहीं है। गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा के दामन का नाम नहीं है। गौसे पाक का दामन कोई कपड़ा का नाम नहीं है, बल्कि गौसे पाक का दामन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का नाम है। गौसे पाक का दामन नमाज पढ़ने का नाम है। गौसे पाक का दामन कुरान पढ़ने का नाम है। गौसे पाक का दामन रोज़ा रखने का नाम है। गौसे पाक का दामन सच्चाई के रास्ता पर चलने का नाम है। गौसे पाक का दामन झूठ से बचने का नाम है। गौसे पाक का दामन
बुराई के रास्ता से बचने का नाम है। हजरात मुहतरम, क्या गौस पाक कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना छोड़े हैं? क्या गौस पाक कभी नमाज पढ़ना छोड़े हैं? क्या गौस पाक कभी कुरान पढ़ना छोड़े हैं? क्या गौस पाक कभी रोज़ा रखना छोड़े हैं? क्या गौस पाक कभी सच्चाई के रास्ता पर चलना छोड़े हैं? क्या गौस पाक कभी झूठ बोले हैं? क्या गौस पाक कभी बुराई के रास्ता पर चले हैं? हजरात मोहतरम, नहीं, गौस पाक कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना नहीं छोड़े हैं। गौस पाक कभी नमाज पढ़ना नहीं छोड़े हैं। गौस पाक कभी कुरान पढ़ना नहीं छोड़े हैं। गौस पाक कभी रोज़ा रखना नहीं छोड़े हैं। गौस पाक कभी सच्चाई के रास्ता पर चलना नहीं छोड़े हैं। गौस पाक कभी झूठ नहीं बोले हैं। गौस पाक कभी बुराई के रास्ता पर नहीं चले हैं। गौस पाक कभी बुरा काम नहीं किए हैं। हजरात मोहतरम, बल्कि गौस पाक हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। गौस पाक हमेशा नमाज पढ़ते थे। गौस पाक हमेशा कुरान पढ़ते थे। गौस पाक हमेशा रोज़ा रखते थे। गौस पाक हमेशा सच्चाई के रास्ता पर चलते थे। गौस पाक हमेशा बुराई के रास्ता से बचते थे। गौस पाक हमेशा बुरा काम से बचते थे। गौस पाक हमेशा झूठ से बचते थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौस पाक का दामन कोई कपड़ा का दामन नहीं है। गौस पाक का दामन कोई कपड़ा के दामन का नाम नहीं है। गौस पाक का दामन कोई कपड़ा का नाम नहीं है। अगर आप गौस पाक का दामन पकड़ना चाहते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो नमाज पढ़ना होगा। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो कुरान पढ़ना होगा। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो रोज़ा रखना होगा। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो सच्चाई के रास्ता पर चलना होगा। हमेशा सच बोलना होगा। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो बुराई के रास्ता को छोड़ देना होगा। हमेशा सच्चाई के रास्ता पर चलना होगा। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो झूठ कभी नहीं बोलना होगा। हजरात मुहतरम, तब गौस का दामन पकड़ सकते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि गौस आजम इमामुत्तुका वन्नुका, गौस आजम इमामुत्तुका वन्नुका, अरे जलवे शान कुदरत खिलाफ वसलाम। हजरात मुहतरम, गौस का दामन कोई कपड़ा का दामन नहीं है। गौस का दामन कोई कपड़ा के दामन का नाम नहीं है। गौस का दामन कोई कपड़ा का नाम नहीं है, बल्कि गौस का दामन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का नाम है। गौस का दामन नमाज पढ़ने का नाम है। गौस का दामन कुरान पढ़ने का नाम है। गौस का दामन रोज़ा रखने का नाम है। गौस का दामन सच्चाई के रास्ता पर चलने का नाम है। गौस का दामन झूठ से बचने का नाम है। गौस का दामन बुराई से बचने का नाम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के वक्त कहीं जा रहे थे और आपके जिस्म पर बड़ी कीमती जुब्बा था। एक चोर ने आपके जुब्बा को देखा तो वो चोर आपके जुब्बा को चुराना चाहा। फिर वो चोर भी आपके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते जब आप एक घने जंगल में पहुंच गए तो अब वो चोर के दिल में ये ख्याल आया कि यहाँ शोर मचाने पर भी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। फिर वो चोर बड़ी तेजी के साथ हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और आपके जुब्बा के दामन को पकड़ लिया। हजरात मुहतरम, जैसे ही वो चोर आपके जुब्बा को खींचना ही चाहा, इतना ही में हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों
दोनों हाथों को उठाकर अपनी तासीर ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कलमात को कहे कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जिस तरह तेरा इस बंदे ने आज तेरे अब्दुल कादिर के दामन को थामा है, क़यामत तक इसका हाथ मेरे दामन से छूटने ना पाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस जुमला को सुनते ही चोर के दिल की कैफियत बदल गई और वो चोर हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन के कदमों में गिर गया और फौरन तौबा कर लिया। फिर हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन की निगाह विलायत के सहारे वो चोर चंद ही दिनों में मर्तबा विलायत पर फाइज हो गया। वो चोर चंद ही दिनों में वली बन गया। हजरात मुहतरम, क्या शान है मेरे गौसे आजम की निगाह पाक की, जिसकी बरकत से चोर वली बन गया। क्या शान है मेरे गौसे पाक की कि चोर को वली बना दिए। हजरात मुहतरम, इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि निगाह वली में ये तासीर देखी, निगाह वली में ये तासीर देखी, अरे बदलती हजारों के तकदीर देखी। हजरात मुहतरम, क्या शान है मेरे गौसे आज़म की निगाह पाक की, जिसकी बरकत से चोर वली बन गया। क्या शान है मेरे गौसे पाक की कि चोर को वली बना दिए। हजरात मुहतरम, मेरे गौसे पाक की तरह कोई वली नहीं आए हैं और नहीं आ सकते हैं और नहीं क़यामत तक आएंगे। मेरे गौसे पाक सारे वलियों से बड़े हैं। मेरे गौसे पाक सारे वलियों का बादशाह है। मेरे गौसे पाक सारे वलियों का सरदार है। मेरे गौसे पाक के कदम मुबारक सारे वलियों के गर्दन पर है। मेरे गौसे पाक की तरह कोई वली नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र में अपनी माँ से इजाज़त लेकर इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से बगदाद शरीफ एक काफ़िले के साथ रवाना हो गए। जाते जाते रास्ते में डाकुओं ने काफ़िले पर हमला कर दिया और सारे काफ़िले वालों के सामान को लूट लिया। एक जगह खड़े होकर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सब माजरा देख रहे थे। इतना ही में एक डाकू आपके पास आया और आपसे कहा कि ऐ लड़के, तुम्हारे पास क्या चीज़ है? तो गौसे पाक ने कहा कि मेरे पास 40 दिनार है। तो डाकू ने इस बात को मजाक समझकर चला गया। उसके बाद फिर एक और डाकू आपके पास आया और वो डाकू भी आपसे यही पूछा कि ऐ लड़के, तुम्हारे पास क्या चीज़ है? तो गौसे पाक ने यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार है। तो वो डाकू भी इस बात को मजाक समझकर चला गया और जाकर डाकू के सरदार से ये सब वाकया बयान किया। तो डाकू के सरदार ने कहा कि जाओ और उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। तो डाकू ने मेरे गौसे पाक को सरदार के पास ले गया। तो सरदार ने गौसे पाक से पूछा कि ऐ साहबजादे, तुम्हारे पास क्या चीज़ है? तो गौसे पाक ने यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार है। तो सरदार ने कहा कहाँ है? गौसे पाक ने कहा कि मेरे बगल के नीचे सिला हुआ है। तो सरदार ने कहा कि इसके बगल को चेक करके देखो। हजराते मुहतरम, तो चेक करने के बाद क्या देखता है कि सच में इसके बगल के नीचे 40 दिनार सिला हुआ है। उसके बाद फिर सरदार गौसे पाक से कहा कि ऐ लड़के, अगर तू चाहता तो ये 40 दिनार झूठ बोलकर बचा सकता था, लेकिन तू ऐसा नहीं किया, तू झूठ नहीं बोला। तो गौसे पाक ने सरदार से कहा कि ऐ सरदार, चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया था कि ऐ बेटा, रास्ते में कितना भी परेशानी
परेशानी आ जाए, रास्ते में कितना भी मुसीबत आ जाए, लेकिन कभी भी सच का दामन नहीं छोड़ना, कभी भी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। तो क्या मैं 40 दीनार के लिए अपनी माँ से किए हुए वादा को तोड़ दूँ? क्या मैं 40 दीनार के लिए अपनी माँ के नसीहत को भूल जाऊँ? नहीं, कभी नहीं। मैं 40 दीनार दे सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ से किए हुए वादा को नहीं तोड़ सकता। मैं 40 दीनार दे सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की नसीहत को नहीं भूल सकता। इसलिए मैं सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच कह दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस प्यारी बात ने, इस सच ने डाकू के सरदार के दिल की कैफियत बदल दी और सरदार के आंखों में आंसू आ गए। सरदार ने गौस पाक से कहा कि ऐ लड़के, तुम अपनी माँ से किए हुए सिर्फ एक वादे को नहीं तोड़ सकता, और मैं हमेशा खुदा से किए हुए वादा को तोड़ता आया हूँ, हमेशा तोड़ रहा हूँ, हमेशा तोड़ता आ रहा हूँ। हजरत मोहतरम फिर सरदार गौसे पाक के कदमों में गिर गया और फौरन तौबा कर लिया। ये देखकर सारे डाकू ने भी गौसे पाक के कदमों में गिर गए और फौरन तौबा कर लिए और सारे काफले वालों के सामान को लौटा दिए। और सारे डाकुओं ने सरदार से कहे कि ऐ सरदार, आप जिस तरह पहले हमारे सरदार थे, आज भी आप उसी तरह हमारे सरदार हैं। उसके बाद फिर डाकू के सरदार और सारे डाकू ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और अपने दौर का सबसे अच्छा इंसान, सबसे नेक इंसान, सबसे परहेजगार इंसान, सबसे सालिहीन इंसान बन गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मेरा हाथ पर सबसे पहले तौबा करने वाले ये वही डाकू लोग हैं। हजरत मुहतरम किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, अरे दामन है हाथ में पीराने पीर का। हजरत मुहतरम, मेरे गौसे पाक की तरह कोई वली नहीं। मेरे गौसे पाक सारे वलियों से बड़े हैं, मेरे गौसे पाक सारे वलियों से अफजल हैं, मेरे गौसे पाक सब चीज़ में सारे वलियों से आला है, सारे वलियों से ऊंचा है। सब चीज़ में, चाहे मर्तबा में हो या अच्छे में हो, सच्चे में हो, खूबसूरत में हो, ताकत में हो, करामत में हो, सब चीज़ में मेरे गौसे पाक सारे वलियों से आला है। मेरे गौसे पाक के करामत की तरह किसी वली का करामत नहीं, मेरे गौसे पाक की करामत से ज़्यादा किसी वली का करामत नहीं। मेरे गौसे पाक की करामत बहुत सारे हैं और उनमें से चंद करामतें ये हैं कि हुजूर गौसे पाक ठोकर मारकर मुर्दा को ज़िंदा कर देते थे। हुजूर गौसे पाक 12 साल के डूबे हुए दूल्हा बाराती कश्ती को निकाले थे। हुजूर गौसे पाक चोर को वली बना देते थे। हुजूर गौसे पाक ईशा के वज़ू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़े थे। हज़रात मोहतरम, ये शान है मेरे गौसे पाक की, ये करामत है मेरे गौसे पाक की। मेरे गौसे पाक की बहुत सारी करामतें हैं। हज़रात मोहतरम, तो अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो नमाज़ पढ़िए। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो कुरान पढ़िए। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो रोज़ा रखिए। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो सच्चाई के रास्ता पर चलिए, हमेशा सच बोलिए। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो झूठ से बचिए, झूठ मत बोलिए। अगर आप गौस का दामन पकड़ना चाहते हैं तो
برائی کے راستہ کو چھوڑ دیجئے، برا کام مت کیجئے، تب غوث کا دامن پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میں ہمیشہ سچ بولنے اور ہمیشہ سچ کے ساتھ دینے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں یہ شعر کے ساتھ کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، کہ جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتوں کی نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو سچا سنی اور پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے۔ یا اللہ پاک دنیا میں جتنا بھی مسلمان لوگ پریشان میں ہیں سارے مسلمانوں کے پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو روح نکلتے وقت زبان پر کلمہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کچھ رہے یا نہ رہے روح نکلتے وقت تک سلامت ایمان رکھنا۔ یا اللہ پاک اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں یا خامیاں یا گستاخیاں ہو گئی ہیں تو میں ابھی توبہ استغفار کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ توبہ استغفار کیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔